We request all of you to keep your mobile phones on silent mode. Let's begin with the event. दोस्तों इसमें थोड़ा साथ देना। अर्ज किया है, एनर्जी लाओ, इरशाद बोलो, दोबारा करते हैं। अर्ज किया है, ना मैं कमतर ना मैं बेहतर, पर हाँ हूं मैं तुम्हारे बराबर। ना मैं देवी ना मैं शक्ति, पर हाँ हूं मैं एक व्यक्ति। ना मैं भवानी ना महाकाली, पर हाँ हूं मैं शक्तिशाली। ना मैं विधाता ना ही भगवान, पर हाँ हूं मैं जीव की सृजनहार। ना ही प्यार ना ही अधिकार, पर हाँ चाहिए अपना सम्मान। ना मैं सीता ना मैं अहिल्या, पर हाँ हूं मैं सिर्फ महिला। नमस्कार, अभिनंदन, आभार। I Aryan Kumar And I, Khushi Swami, we welcome each and every one of you today to celebrate womanhood, our International Women's Day event that is celebrated on 8th of March every year. We request your energy and love to shower on all of us on this auspicious occasion as we, Gender Sensitization and Equality Initiative Club, celebrate Sangini 2.0. We would like to extend our warm gratitude to our director, Professor Dr. Rashmi Malhotra Dhingra, for giving us this phenomenal opportunity to host this amazing event. We are also grateful to our teacher coordinators for supporting us throughout the event. Let's start this event by calling upon Urs, a gender champion of GSEI, to grace this stage by her dance to Ganesh Vandana. Lord Ganesh, for Urs, the stage is all yours. गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय in worship, God captures your heart. When He's got it, then the real work begins. Hence, we would start this auspicious day by lighting the lamp and taking the blessings of Ma Saraswati, the goddess of knowledge.
Thank you for gracing us with your presence, everyone. We also have with us Dr. Amna, who is an academician, author, social entrepreneur, and curator of ideas. She is currently Senior Assistant Professor of Political Studies at SPM College, University of Delhi. She is a recipient of Godfrey Phillips Golden Ovary Award, St. Stephen's College Centenary Medal for Character Combined with Learning, amongst others. I would request Dr. Agarwal, Dr. Gaurav Agarwal, HOD, Department of... Ms. Jaspinder Kaur is here to enlighten us with her heartfelt presence. She is the founder of CI Foundation. Keeping up an inquisitive and explorative attitude, she has a strong business insight with the ability to plan and execute strategies to streamline the HR operations. I would request Dr. Manju Gupta, HOD, Department of Commerce, to present the sapling to ma'am. Last but not the least, Professor Dr. Sangeeta Malik, who is a senior professor in business management and here with all of us to moderate this panel discussion. She had several papers published in reputed national and international journals. She is a senior editor in 3 reputed journals and has also recently awarded ICSSR projects. I would request Dr. Pathak, senior faculty BJMC, to please come up on the stage and present a sapling to ma'am. Kindly give a huge round of applause for everyone. Have faith, have hope. So let's get to the centerpiece of this Women's Day event. There is no limit to what we as women can accomplish. Thank you very much, all of you, both of you, and the entire team to organize such an event on the behalf of our International Women's Day. We have a panel of eminent speakers with us today, and we are very lucky to have all of them over here. So the empowerment and autonomy of women and the improvement of their political, social, economic and health status is highly important. It is essential for the achievement of sustainable development. The full participation and partnership of both women and men is required in productive and reproductive life, including shared responsibility for the care and nurturing of children and maintenance of the household. In all parts of the world, women are facing threats to their lives, health and well-being, and as a result of being overburdened with work and of their lack of power and influence, in most of the regions of the world, women receive less formal education than men. And at the same time, women's own knowledge, abilities, and coping mechanism often go unrecognized. The power of relations that impede women's attainment of health and fulfilling life operate at many levels of society, from the most personal to the highly public. Achieving change requires policy and program
action that will improve women access to secure livelihoods and economic resources, elevate their extreme responsibility with regard to the housework, removal legal impediments to their participation, and improving the status of women also enhances their decision-making capacity at all levels in all spheres of life, especially in the area of sexuality and reproduction. India G20 presidency is inclusive, equitable, ambitious, decision and action-oriented, pushing forward transformative changes for women economic empowerment. The vision of G20 Empowers is to be the most inclusive and action-driven alliance among business and government to accelerate women leadership and empowerment across the G20 countries. G20 Empowers 2023 will focus on women entrepreneurship as a win-win for equity and economy, creating a partnership for promotion women leadership at a grassroots level and on education. As a game-changing pathway for women empowerment, digital skilling will be a cross-cutting theme across the three focal areas. So on this occasion, we have organized a panel discussion on accelerating equality and empowerment. So continuing with this discussion, I would like Dr. Seema Singh, Professor, Law University of Delhi, to kindly focus or enlighten us with some of her knowledge, her vast experiences, and lot of discussion at the same time. So I like Seema ma'am to continue with us. Over to you, ma'am. Thank you so much, ma'am. First of all, I am extremely thankful to Maharaja Agrasen Institute for inviting me again and giving me this opportunity to share my views on a very much discussed topic, and that is women empowerment. Every day, every year, we celebrate International Women's Day on 8th of March. So I think today, once we are going to discuss again the meaning of the women empowerment, we need to relook the things with a new perspective. For example, if I ask a question that what do you mean by women empowerment? इसका मतलब क्या होता है? What is the definition of women empowerment? This is a very, very important question, and I have asked this question at several places कि what do you understand with this term women empowerment? अगर आप इसको देखोगे तो आपको इसमें कुछ चीज़ें समझ में आती हैं जिसमें कि certain things are explicitly mentioned, like the role of women in politics, education, economy, and besides that education and also the psychological strengthening of women, that is also the part of the women empowerment. लेकिन आज मैं आपसे कुछ और चीज़ें डिस्कस करना चाह रही थी जिस पे कि नॉर्मली बात नहीं की जाती और मुझे लगता है कि हमें इस पर बात करना और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये विमेन एम्पावरमेंट के कॉन्सेप्ट को अगर आप देखते हो और वंस वी आर गोइंग टू डिस्कस द ओरिजिन ऑफ दिस इंटरनेशनल विमेंस डे, ये कहाँ से आया और क्यों आया, ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हम इसको नहीं समझते हैं देन इन दैट सर्कमस्टांसेस वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस टर्म विमेन एम्पावरमेंट इन द करेक्ट सेंस. अगर आप आज भी देखोगे तो पूरी दुनिया में विमेन इज़ स्टिल स्ट्रगलिंग, not only in the underdeveloped countries but in the developing and developed countries also. पूरी दुनिया में अगर आप महिला संघर्ष को देखोगे तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में एक अलग स्ट्रगल है, आप अफ़गानिस्तान और ईरान जैसे देशों में एक अलग तरीके का स्ट्रगल देखते हो, और एक स्ट्रगल आप देखते हो इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो दूसरे देश हैं उनमें कि किस तरीके के स्ट्रगल्स को विमेन फेस कर रही हैं. विमेन एम्पावरमेंट को समझने के लिए हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हाउ द सिचुएशन, कल्चर एंड फिलॉसफी ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर.
कहीं ऐसा तो नहीं है। इसको समझने के लिए कुछ एक पॉइंट्स मैं बोलना चाहूँगी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। वेस्टर्न कंट्रीज़ में बेसिकली अमेरिका से ये मूवमेंट शुरू हुआ जो धीरे धीरे यूरोप तक फैला। व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दिस मूवमेंट? मूवमेंट का मेन रीज़न ये था कि वेमेन वर कॉन्टीन्यूसली सप्रेस्ड इन द कंट्री लाइक अमेरिका एंड यूरोप। और सप्रेशन किस तरीके का था? देयर वर सर्टेन असाइंड वर्क टू देम वेयर दे वर डिप्राइव्ड फ्रॉम द एजुकेशन, they did not have right to property, they did not have right to education, they did not have right to vote also। किसी भी चीज़ का उनको राइट नहीं था। उनके लिए हाउस होल्ड के वर्क जो है असाइन थे और वो उसी को किया करती थी। इवन इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आप ये मिलेगा आपको कि उनके पैरों में लोहे के जूते पहनाए जाते थे ताकि उनके पैरों की साइज़ ना बढ़े, उनको एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट ही नहीं किया जाता था। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, जहाँ से आपका ये फेमिनिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ। उनका इतना सेपरेशन हुआ कि एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ लेवल दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग। जब रिवोल्ट होता है तो रिवोल्ट होने के बाद वो, इसीलिए जब आप फेमिनिस्ट मूवमेंट को देखोगे तो 4 तरीके या 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो सबसे पहला मूवमेंट फेमिनिस्ट जो शुरू होता है उसमें दे आर डिमांडिंग फॉर द मोस्ट बेसिक राइट्स। एजुकेशन नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, राइट टू वोट नहीं है, राइट टू वर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ से शुरू होता है राइट टू डिग्निटी एंड अप्रोप्रिएट राइट टू लाइफ भी नहीं है। इसीलिए वहाँ पे आपने देखा कि वहाँ पर जब फेमिनिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ तो धीरे धीरे उसने वहाँ पे रेडिकल फेमिनिज्म का रूप लिया। एंड रेडिकल फेमिनिज्म क्या था? रेडिकल फेमिनिज्म का मतलब ये था कि मेल के काउंटर में एक फीमेल को खड़ा करना काउंटर में, और काउंटर में खड़ा करने का मतलब क्या है? वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द पैट्रियार्की ऑफ द सोसाइटी। तो पैट्रियार्की ऑफ द सोसाइटी को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? दे स्टार्टेड प्रिज्यूमिंग अबाउट द सोसाइटी, जहाँ पे ये बात की जाने लगी कि हमें मेल्स की ज़रूरत ही नहीं है। एंड दैट हैज़ टेकन द शेप ऑफ रेडिकल फेमिनिज्म। अब धीरे धीरे उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा। पार्टिसिपेशन बढ़ने के बाद हमने देखा ऑफिशियली आई थिंक इन द ईयर 1975 में सबसे पहले ऑफिशियली इंटरनेशनल विमेंस डे डिक्लेयर किया गया। लेकिन अगर आज भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अगर आप देखोगे, विमेन की कंडीशन अक्रॉस द वर्ल्ड देखोगे, तो अभी जो रेजोल्यूशन है वो कहता है कि इक्वलिटी को अटेन करने में अभी भी 134 साल का समय लगेगा। 134 more years. 134 more years means equality in attaining the numbers in the different domains। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और भी है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं हमने क्या किया? हमने जेंडर इक्वालिटी और विमेन एम्पावरमेंट के एक वेस्टर्न मॉडल को अपने ऊपर अप्लाई किया है। अगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव को देखोगे देन द इंडियन condition of the women in the Indian perspective and the condition of the women in the Western perspective, that is entirely different. So I think women empowerment को define करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने culture के हिसाब से, हम अपने past के हिसाब से हम चीज़ों को realize करें। If we are going to copy the things, if we are going to impose the things upon ourselves without understanding and realizing the correct model, then in that circumstances ये ऐसा शेप भी ले सकती है जो कि पूरी सोसाइटी के लिए बहुत हेल्दी ना हो। तो ऑब्वियसली जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन हो गया, राइट टू डिसीजन है, राइट टू पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिक्स है, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देते हुए हमें एक विमेन एम्पावरमेंट की सस्टेनेबल, एप्रोप्रिएट और इक्विटेबल डेफिनेशन अपनी खुद की क्रिएट करनी होगी। अभी आगे और भी क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग इसको और डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग, बट फॉर दिस दैट्स ऑल फॉर मी फॉर दिस क्वेश्चन। Thank you very much, Seema ma'am, for your experiences and that throwing light on various aspects and culture and philosophy that's being a part of our culture. And we should understand that empowerment with this culture and philosophy, what is the Indian culture and philosophy, and then probably like हमको ऐसा लगता है कि पीछे कई देवियां हैं और हमारे इंडिया में तो बहुत सारी देवियों को पूजा जाता है, ये कल्चर है हमारा। और फिलॉसफी भी यही है कि
हम बाहर तो बहुत पूजा करके आते हैं देवियों की, लेकिन अपने घर की देवियों को बहुत ज़्यादा पूजा हम नहीं करते या ये बहुत इग्नोर करते हैं। तो ये रियलाइजेशन हमको बहुत ज़रूरी है कि कैसे उनको एक सम्मान और किस तरीके से उनको भी एट पार विथ अदर्स एक रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है, तो किस तरीके से उनको देना। और इसी सेंस में मेरे को लगता है कि एक ट्रू एम्पावरमेंट ही है, और यही एक ट्रू एम्पावरमेंट का मतलब भी यही है मेरे ख्याल से। सीमा मैम, देखिए, जेंडर इक्वलिटी टर्म की जब मैं डेफिनेशन की बात करती हूँ तो मैंने इसको कई जगह पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी को मेरे हिसाब से हम कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टूड करते हैं। कॉपीइंग ईच अदर रोल इज़ नॉट जेंडर इक्वलिटी। तो अभी आप देखिए, एक ट्रेंड चलता है कि ये अमेरिका से शुरू हुआ। अमेरिका में जब मैंने आपको रेडिकल फेमिनिज्म की बात करी तो उन्होंने क्या बोला कि जो मेन करते हैं हम वो करेंगे। तो वहाँ पे शराब पीना, सेक्सुअल लिबर्टी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को न लेना, इस तरीके की चीज़ें धीरे धीरे वहाँ पे शुरू हुई। तो कॉपी करना किन चीज़ों में शुरू किया, जो निगेटिव चीज़ें थी। तो उस समय जो जेंडर इक्वलिटी की डेफिनेशन वहाँ पे चली, वो क्या चली कि हम एक दूसरे के रोल को कॉपी करेंगे। दिस इज़ एक्चुअली नॉट जेंडर इक्वलिटी। Gender equality is altogether a very very different thing, and the gender equality means giving respect to the uniqueness of each and every gender. इसको मैं एक स्टोरी से आपको शायद समझाने का प्रयास करूं, अगर आपको समझ में आती है, क्योंकि मुझे ये स्टोरी बहुत पसंद है। उसका रीज़न ये है कि हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें हम सबटल बॉडी पे जा कर के बात करते हैं। सबटल बॉडी मतलब नॉट द फिजिकल बॉडी विच इज़ एक्सप्रेसिंग आवरसेल्फ। सबटल बॉडी पे जा कर के जब आप बात करोगे तब शायद आप जेंडर इक्वलिटी को कहीं बेटर तरीके से समझ सकते हो। और आपको पता है कि हमारे यहाँ पे अभी बात की जा रही थी शिव और पार्वती की। शिव और पार्वती सिर्फ एक देवता नहीं है। शिव और पार्वती का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो एक मेटाफिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। मेटाफिजिक्स का वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमने शिव और पार्वती को हमेशा एक देवी देवता के रूप में देखा कि हम उनकी पूजा करते हैं। जो हमारा नॉलेज सिस्टम है वो पूरा का पूरा क्वांटम फिजिक्स पे चलता है। शिव और पार्वती की जो स्टोरी है, जो जेंडर इक्वलिटी को अगर मैं कहूँ कि भारतीय दृष्टिकोण क्या है जेंडर इक्वलिटी को डिफाइन करने का, तो मुझे लगता है ये स्टोरी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। आपने सुना है सप्त ऋषियों में एक ऋषि है जिनका नाम है ऋषि भृगु। भृगु जो है वो भगवान शिव के प्रबल भक्त हैं। वो बिना उनकी परिक्रमा किए कोई भी काम शुरू नहीं करते, लेकिन उनको प्रॉब्लम किससे है? प्रॉब्लम है उनको पार्वती से। जब वो सुबह आते हैं, शिव जी बैठे रहते हैं, शिव की परिक्रमा करते हैं और चले जाते हैं। एक दिन शिव ने पार्वती को अपने बगल में बिठा लिया। अब भृगु परेशान हो गए क्योंकि शिव की परिक्रमा करने के लिए उनको पार्वती की परिक्रमा करनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, भृगु ने एक चूहे का रूप धारण किया और वो शिव की परिक्रमा करके चले गए। फिर शिव ने क्या किया, शिव ने पार्वती को अपनी गोद में बिठा लिया। अब भृगु क्या करें, क्योंकि अब शिव की परिक्रमा करने के लिए उनको दोनों की परिक्रमा करनी पड़ेगी। भृगु ने अपने आप को एक पक्षी बनाया और शिव की परिक्रमा करी। धीरे धीरे करते करते शिव ने पार्वती को अपने अंदर समाहित कर लिया और वो एक नए रूप में प्रकट हुए जिसको कहा जाता है अर्धनारीश्वर। ये जो अर्धनारीश्वर का मतलब क्या है? अर्धनारीश्वर को हम अलग अलग रूपों में देखते हैं। अर्धनारीश्वर का मतलब होता है कि हर फीमेल बॉडी में एक मेल इंस्टिंक्ट और हर मेल बॉडी में एक फीमेल इंस्टिंक्ट होता है, एंड दे बोथ आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। यहाँ पे कंपटीशन नहीं है कि हम तुम्हारे अस्तित्व को नकार देंगे। इसका मतलब ये है कि दूसरे के अस्तित्व के बिना खुद मेरा अस्तित्व भी नहीं है। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ जेंडर इक्वालिटी। और इसीलिए जब आप देखोगे, अगर आप इसको फिजियोलॉजिकल सेंस में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फीमेल बॉडी से मेल हार्मोन्स और मेल बॉडी से फीमेल हार्मोन्स निकलते हैं, सिर्फ उनकी क्वांटिटी में डिफरेंस होता है। इसीलिए हर मेल के अंदर एक फीमेल, आप देखो किसी की माँ की अगर डेथ हो जाती है तो फादर माँ बन करके अपने बच्चे को पाल लेता है, और हर लेडी के अंदर में एक फादर इंस्टिंक्ट होता है। अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो फादर बन करके वो अपने बच्चे को पाल लेती है। ज़रूरत पड़ने पे उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो उस इंस्टिंक्ट को ग्रो करा सकें। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई होते होते मर्दानी रानी लक्ष्मीबाई बन जाती हैं, यानी अगर उनको तलवार उठानी है तो उनको वो भी आता है।
हमारे यहाँ पे जो जेंडर इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है वो एक दूसरे से कंपटीशन का कॉन्सेप्ट नहीं, वो कॉम्प्लीमेंट करने का कॉन्सेप्ट है। और हम अगर इसको इस सेंस में नहीं समझेंगे तो जेंडर इक्वलिटी की जिस डेफिनेशन को वेस्ट ने अप्लाई किया है, आप जा कर के देखना उनके यहाँ ये मॉडल आज फेल हो चुका है। और फेल होने का रीज़न ये है कि वो माइक्रो या सबटिल बॉडी पर जाकर के इन चीज़ों की एनालिसिस ही नहीं करते कि अगर आप अननेसेसरली एक दूसरे से कंपटीशन करते हो या एक रोल दूसरे के रोल को कॉपी करते हो तो उसके ऊपर उसका आपके ऊपर क्या फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। इसीलिए जब आप भारत को देखोगे ना तो भारत में जो ड्रेस डिज़ाइन है वो भी साइंटिफिक है, उसके पीछे भी एक पूरा का पूरा विज्ञान है। हमें लगता है हमारा शरीर ऐसे ही चल रहा है, नहीं, इसको चलाने के लिए पूरी एक एनर्जी होती है और वो एनर्जी कैसे चैनलाइज्ड होती है इसको जानने के लिए आपको सबटिल बॉडी या जिसको आप क्वांटम फिजिक्स कहते हो या मेटाफिजिक्स कहते हो, जब आप उस लेवल पर जा कर के इसको समझोगे तब आपको जेंडर इक्वलिटी की सही डेफिनेशन समझ में आएगी। और इसीलिए जब आप किसी से भी पूछो कि जेंडर इक्वलिटी को आप डिफ़ाइन करो, आपको कहीं इसकी अप्रोप्रिएट डेफिनेशन नहीं मिलती। इसकी डेफिनेशन आपको अप्रोप्रिएट अगर मिलती है तो यहाँ पे मिलती है। ऋग्वेद का एक स्रोत है, सूत्र है, वो क्या कहता है कि जैसे चने की दाल होती है उसके ऊपर एक कोटिंग होती है, वो देखने में बाहर से एक लगती है लेकिन उसके अंदर 2 बीजपत्र होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। अगर उसमें एक भी दूसरे से अपने को बड़ा करने की कोशिश करेगा तो दाल का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यही जेंडर इक्वलिटी है, आप दोनों मेल और फीमेल एक दूसरे के अस्तित्व को बिना बड़ा या छोटा रखने के भाव से एक्सेप्ट करें, तब जा कर के आप एक्चुअल सेंस में जेंडर इक्वलिटी को अटेन कर सकते हो। हम लड़के जैसे दिखें इसलिए जेंडर इक्वल हैं, या लड़की जैसे कोई दिखे इसलिए हम जेंडर इक्वल, ये जेंडर इक्वलिटी है, ये मिसकॉन्सेप्ट है। इसीलिए वेस्ट में जो एक दूसरे के रोल को कॉपी करने का मॉडल शुरू हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ पे उनका पूरा फैमिली सिस्टम टूट गया। मदर कहती है कि मैं बच्चे को क्यों देखूं, फादर कहता है तुम्हें नहीं देखना तो मैं क्यों देखूं। और इसीलिए आप देखोगे कि वहाँ पे जो एडोलेसेंस एज के बच्चे हैं उनमें वायलेंस की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम ब्लाइंडली किसी मॉडल को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो मॉडल हमारे यहाँ सूटेबल है भी कि नहीं है। हमारी एक आदत बन गई कि जो वहाँ से आ रहा वही सही है, ऐसा नहीं है। विमेन एम्पावरमेंट को अगर आपको सही ढंग से समझना है तो यहाँ पे आपको 50 एग्जाम्पल मिलते हैं। आपका पूरा का पूरा जो आपकी टेक्स्ट है वो विमेन एम्पावरमेंट से भरे पड़े हैं। विदाउट कॉपीइंग द रोल ऑफ ईच अदर, एन्जॉइंग एंड सेलिब्रेटिंग योर ओन यूनिकनेस in your own way. So this is the correct interpretation and correct meaning of gender equality as per me. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने जो बातें यहाँ पर की हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, प्रयास किया है, वो बहुत सराहनीय है। और सही में कि जेंडर को समझना है तो कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर, द रोल इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और उसको विथ लव, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी टू बोथ द जेंडर, आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये नहीं है कि सिर्फ औरत को ही इन सब लव, डिग्निटी एंड की ज़रूरत है, बल्कि आदमी को भी ऐसे ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, और तभी एक बैलेंस बनता है फैमिली में और सोसाइटी में भी, और फिर वो सोसाइटी बहुत प्रोग्रेस करती है। थैंक यू वेरी मच, आपके बहुत अच्छे लगे विचार। और अब मैं बुलाना चाहूँगी जसप्रीत कौर मैम को, जो स्याही फाउंडेशन से हैं। ये TCS में काम करती हैं, लेकिन इनका जो शौक़ है वो NGO है स्याही फाउंडेशन, जो अंडर प्रिविलेज किड्स एंड चिल्ड्रन फ्रॉम स्लम एरियाज़ के लिए मैं काम कर रही हैं, और वहाँ पर वो उनको एजुकेट करती हैं। हेलो, हाँ, वो एजुकेट कर रही हैं और उनको फ्यूचर में इस तरीके का एजुकेशन या हायर एजुकेशन उनको मिल रहा है, जो कि एक बहुत सराहनीय प्रयास है। तो अब मैं इनको बुलाना चाहूँगी और जानना चाहूँगी कि इनके क्या विचार हैं एम्पावरमेंट, एक्सेलरेटिंग इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट के ऊपर। तो जसप्रीत कौर मैम, ओवर टू यू। And I would like to thank Maharaja Agarsen Institute also for, I'm sitting here with such big dignitaries. I'm nothing in front of them. मैं अपने कुछ लाइव एग्जाम्पल से ही इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहूँगी। मैं एक NGO चला रही हूँ स्याही फाउंडेशन के नाम से। मैंने ये सिर्फ अपने शौक़ के लिए, मतलब
अपनी मोनोटनस लाइफ को ब्रेक करने के लिए शुरू किया था इनिशिएटिव, कुछ बच्चों को एम्स फ्लाईओवर के नीचे पढ़ाना। तो वहाँ पे मैंने क्या देखा, लड़के तो फिर भी जो वहाँ पे जो बच्चे थे उनमें जो लड़कियाँ थी वो राजस्थान से यहाँ पे माइग्रेट होके आए थे, वो कुछ बैक करते थे यहाँ पे। और जो लड़कियाँ थी वो 8-9 साल की उम्र में ही देवर मैरिड। उनका वहाँ राजस्थान में गौना करके एक चीज़ होती है कि बचपन में शादी कर देते हैं, फिर 18 या 18 साल के बाद उसे उसके हस्बैंड के पास भेज दिया जाता है। तो 8 साल की बच्ची एक सुहाना नाम की, वो मुझे बताती है मेरा भींद गांव में है और वो पढ़ रहा है, पर मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे कमाना है। मेरी मम्मी है यहाँ पे, मेरे पापा हैं, पापा चल नहीं पाते हैं तो मुझे उनके लिए काम करना है। तो इस बच्चे की छोटी सी बात कि उसे नहीं पढ़ना, उसके मम्मी पापा के लिए उसे कमाना है 8 साल की उम्र में, और उसके 8 साल की उम्र में शादी हो रखी है। ये एक बहुत बड़ा एक चोट थी मेरे लिए कि ऐसा भी आज की टाइम पर भी जब हम बोलते हैं कि हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं और सब एजुकेटेड हैं, तब भी हमें ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चे मैरिड हैं। स्पेशली राजस्थान में ये बहुत ज़्यादा है। और इसके सिवा मैं बोलना चाहूँगी कि हमें जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट तो बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम ओनली, राइट। हम घर पे वुमेन ने देखा है बहुत सारे ऐसे केसेस जहाँ वुमेन को घर से ही बहुत सारी क्राइसिस फेस करने को मिलती है। लाइक उन्हें में भी एजुकेशन का राइट नहीं होता, या जल्दी शादी कर दी जाती है, या कहा जाता है तुम कमा के क्या करोगी, बेटा है वो कमा लेगा। सो देयर आर सो मैनी सच एग्जाम्पल्स जो मैंने अपने डे टू डे लाइफ में देखे हैं। एंड आई थिंक हम जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर सकते हैं। लाइक वर्क प्लेस पे अब बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, पेरेंटल लीव्स मिलती हैं, वुमेन को सपोर्ट किया जाता है कि वो अपना घर और ऑफिस अच्छे से मैनेज कर सके। और आई थिंक गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर वुमेन एम्पावर होंगी तो पॉवर्टी भी कम होगी, और ऑब्वियसली ये इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्पफुल होगा। सो नाउ टू मैम, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। और जैसे आपने बताया कि बहुत आप संगनी के स्याही के थ्रू आप काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं, और अच्छे पेन कम इन फ्रंट ऑफ द कार और भीख मांगते हुए दिखते हैं तो वो बड़ा बुरा सा लगता है। कई बार मैंने भी उनसे पूछा कि काम करोगे क्या, चलो मेरे साथ मैं तुमको काम देती हूँ। भीख मांगने से तो अच्छा कोई अच्छा काम करो और पढ़ो लिखो, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया उस समय। वो कहते नहीं, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। मतलब आई थिंक दे आर कंफर्टेबल विद दैट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल। तो ये यहाँ पर एक माइंडसेट को कैसे आप चेंज करेंगे वहाँ? सबसे पहले बच्चों से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, हमें उनकी फैमिली से बात करनी होती है। लाइक मैंने भी अपने केस में सबसे पहले फैमिलीज़ को कन्विंस किया था कि आप काम करो और बच्चों को पढ़ने दो। उन्होंने बोला कि बच्चों को पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, तो उन्हें पहले तो पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को इस काम से हटाया जाए। उन्हें ये समझना ज़रूरी है कि पढ़ने के बाद जो भी उन्हें हेल्प मिलेगी वो इस काम से कहीं ज़्यादा होगी। और आई थिंक हम उन्हें कोई काम दे सकते हैं, उनकी फैमिली को कोई काम दे सकते हैं, ताकि वो बच्चों को विड्रॉ करें और एजुकेशन की तरफ उन्हें खुद पुश करें कि वो पढ़ें। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। फिर से आपके पास आते हैं। अभी हम हमारे पास एक बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं, तो हम उनका भी सुनना चाहेंगे। डॉक्टर आमना मिर्ज़ा जो एक एडमिशन है, ऑथर हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, क्यूरेटर ऑफ आइडियाज़ एंड एलुमनाई ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस मुद्दे पर उनका क्या विचार है। धन्यवाद मैम। जसविंदर मैम, आदरणीय उमेश जी, आदरणीय एचओडी साहब, और आज महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट के इस सभागार में यहाँ पर उपस्थित हमारे वंडरफुल होनहार छात्र, मैं आप सबका सबसे पहले इस पावन मंच से सबको नमस्कार, वंदन व अभिनंदन। आप सब ने मुझे आज इस महत्वपूर्ण विषय पर, इस महत्वपूर्ण उत्सव पे बुलाया। मैडम, उमेश जी व सभी साथियों का तहे दिल से सहृदय आभार। संगिनी जब आज जेंडर सेंसिटाइजेशन व जेंडर इक्वालिटी के विषय पर मंथन कर रहा है, तो आज इस वैचारिक सृजन में, क्योंकि जिस प्रकार से मैम ने मुझे इंट्रोड्यूस करा, जी हाँ, बचपन से मेरा कला, किताब, सेवा, शिक्षा से
काफ़ी गहरा ताल्लुक़ है। वो तो यूनिवर्सिटी में नौकरी में हम सौभाग्य से मिल गई। तो आइए आज अपने बात को रखते हुए मैं अपनी वार्ता को, अपने संवाद को, क्योंकि ये डायलॉग है, इसको मैं 2 भाग में विभाजित करने वाली हूँ। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ सभागार में उपस्थित सारे युवा शक्ति, युवा हमारे साथी जो मेरे साथ हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ टुगेदर, आप मेरे साथ इस संवाद में होंगे। क्या आप होंगे? यार आवाज़ नहीं आ रही, मैं इतनी दूर से दिल्ली यूनिवर्सिटी से, सीमा जी हम सब लोग आए हैं महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट में। युवा साथी ऊर्जावान, धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले जब हम लोग जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, देखिए मैं इंटरनेशनल रिलेशंस में कोशिश करती हूँ मेहनत करने की, देश व विदेश में खूब काम कर रही हूँ और अखबारों में भी लिखती हूँ, तो उसके संदर्भ में मैं आपसे साथ ये बात रखूँगी। और जो वैश्विक परिस्थिति है वो हमारे आम जीवन से जुड़ी हुई है। आदरणीय सीमा मैम ने एक बहुत ही स्पष्ट रूप से हमारे बीच रखा है कि जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें गहराई तक जाने की ज़रूरत है। देखिए प्राकृतिक रूप से महिला व पुरुष हम सब असमान हैं, लेकिन जब ये प्राकृतिक असमानता एक सामाजिक बाधा के रूप में उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि मैं महिला हूँ शायद मैं ये नहीं कर सकती, तब जेंडर के विषय को हमें गहराई से देखना होगा। हम ये नहीं कहते कि हम सब समान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समानता का भाव पुरुष बनाम महिला को समझने में अनिवार्य है। वी कैन नॉट अलाउ आवर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस टू ऑपरेट इन अ मैनर विच समवेयर वर्क्स इन द मैनर ऑफ अ सोशल कंस्ट्रक्ट। क्योंकि हमने बात अंतर्राष्ट्रीय संबंध की करी। जब आप सभी साथी कभी भी कोई न्यूज़ चैनल, अखबार या किताब या पर्चा देखते हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में बात हो, कहीं ना कहीं विचार होता है युद्ध का, कहीं ना कहीं विचार होता है सत्ता का, शक्ति का, पावर का। नारीवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यहीं से शुरू करता है कि जो इस प्रकार से सीमा जी ने भी बहुत गहरी बात करी कि जो हमारी अजम्पशंस हैं, जो प्रथाएं हैं जिसके संदर्भ में हम किसी विषय को समझते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रत्यसत्तावाद या पुरुषवादी सोच के साथ आधारित है। जब मैं शक्ति की बात करती हूँ तो हम देखते हैं कब्जे के बारे में, जब मैं राष्ट्रहित की बात करती हूँ तो हम देखते हैं किस प्रकार से आगे जमीनों को, चीज़ों को, अपने स्तर को हमें आगे बढ़ाना है। नारीवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध में देर से आया। देखिए जब हम इसको लिटरेचर में देखते हैं, सोशियोलॉजी में देखते हैं, ये काफ़ी समय से चल रहा था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ये 1990 के दशक में आया। हैरानी की बात है कि 1919 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर पहली चेयर की स्थापना हुई, लेकिन इसी अध्ययन में लगभग 70 वर्ष से भी ज़्यादा 1990 तक नारी क्या पावर को देखती है, नारी किस प्रकार से सुरक्षा को देखती है, वो आवाज़ें गायब थी। तो 1990 में जब शीत युद्ध की समाप्ति होती है, विद द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, देयर इज अ नीड टू रीथिंक कि कहीं ना कहीं जो आवाज़ें अभी तक अध्ययन में हमें सुन रही हैं वो एक तरफी हैं, कहीं ना कहीं जो आवाज़ें, जो विचार, जो काम, जो ग्रंथ हमें दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें नारी के विचारों का हनन हुआ है। तो जो 1990 में नारीवाद का विश्लेषण हुआ अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं एक और बात भी है कि क्या हमने केवल पश्चिमी मूल को, नारीवाद को आगे बढ़ाने को हमने प्रोत्साहन दिया है। तो जो विचार 1990 में उजागर हुआ वो आज भी ज़रूरी है। क्या हम विषय को, क्योंकि ये विषय अब केवल आम टेलीविज़न चैनल तक या केवल दूर तक सीमित नहीं है, ये विषय अब हमारे जीवन पर लागू होता है। जब मैं जलवायु परिवर्तन की बात करूं, जब मैं तकनीकी क्रांति की बात करूं, यहाँ पर महिला व पुरुष दोनों को कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा परिस्थिति से आगे बढ़ने के लिए। इस वर्ष की जब हम थीम के बारे में बात करते हैं, बहुत अनिवार्य है, वो चौथी औद्योगिक क्रांति से जुड़ी हुई है। इस वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है डिजिटल, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर जेंडर इक्वालिटी। देखिए अगर आंकड़ों के हवाले से मैं बात करूं, देखिए अब आने वाला समय मशीन लर्निंग का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। इफ़ आई गो बाय रिपोर्ट्स, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है कि आज की वर्तमान परिस्थिति में
मात्र 22% महिलाएं टेक्नोलॉजिकल क्रांति का भाग हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्तर का वो भाग हैं। भारत ने सदा एक बात उजागर करी है कि आज हमें वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सुधार की ज़रूरत है। ये सुधार सबसे पहले, जैसे सीमा जी ने बड़े गहराई से बात करी, पहला तो हमें आध्यात्मिक स्तर को पकड़ना होगा। फेमिनिज्म, दिस इज व्हाई, कैन नॉट बी रिड्यूस टू मेल बैशिंग ओनली। हर एक महिला नारीवादी नहीं होती, उसी प्रकार से हर एक पुरुष भी मिसोजिनिस्ट नहीं होता। तो आज इस मंच से ऑफ कोर्स आई सल्यूट ऑल द वंडरफुल वुमेन डूइंग वंडरफुल वर्क इन द एरिया ऑफ जेंडर इक्वालिटी, बट आई इक्वली सल्यूट ऑल द वंडरफुल मेन जो कंधे से कंधा मिला के नारी के लिए, महिला के लिए, एक औरत के लिए दुनिया ये और सुंदर और सुरक्षित बना रहे हैं। सो फेमिनिज्म कैन नॉट बी रिड्यूस टू मेल बैशिंग। देन फेमिनिज्म इम्प्लाइज डाइवर्सिटी। जी हाँ, इस विविधता को हमें समझना होगा, क्योंकि ये विविधता पृष्ठभूमि है एक महिला के संघर्ष को जानने की। तो आज की इस विषय में मैं ये ज़रूर कहूँगी, देखिए आज ज़माना बदल गया है, तकनीक ने हमारे जीवन में कई अवसर प्रस्तुत कर दिए हैं। तो इस तकनीकी बदलती हुई दुनिया में नारीवाद का विषय में भी ज़रूरी है कि महिला व पुरुष दोनों एक साथ मिलकर इस क्रांति में आगे बढ़ें, जिसे हम कहते हैं stronger together. Then again, I'll just like to say that when we are reflecting on the bigger picture of gender equality, it is equally very essential to understand the unspoken voices. आदरणीय सीमा जी ने हमारे बीच बड़े महत्वता से बताया एक पश्चिमी विचार, जो कहीं ना कहीं जब हम फेमिनिज्म को समझते हैं। और मैं आज आपके बीच अगर आंकड़ों से बात करूं तो अभी 24 जनवरी 2023 में जेंडर गैप इंडेक्स जो आता है वहां पर सुधार आया है, और ये सुधार आया है भारत की आवाज़ से, क्योंकि भारत ने कहा है कि जब आप जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें तो केवल कुछ इलीटिस्ट विचार ना हो कि केवल कितनी महिलाएं संसद में हैं, कितनी महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। आपको ग्रामीण ग्रासरूट्स एम्पावरमेंट को भी देखना होगा। उस जिस प्रकार से भारत ने G7 के सामने बात रखी है दैट टुडे द आइडिया ऑफ जेंडर इक्वालिटी इज नो लॉन्गर अबाउट विमेन इक्वालिटी बट अबाउट विमेन लेड डेवलपमेंट। तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं डॉक्टर बने, शिक्षक बने, खूब समाज की बेहतरी के लिए काम करें, लेकिन ये काम केवल महिला अकेले नहीं कर सकती। तो मुझे उम्मीद है कि आज के जो जेंडर सेंसिटाइजेशन का काम है, देखिए साथियों, नारी का जो समानता का जो विषय है वो एक दिन का नहीं है, ये लड़ाई प्रत्येक दिन की है। और इस प्रत्येक दिन की लड़ाई में, इस संघर्ष में महिला को सदा पुरुष का साथ चाहिए। तो जितने भी मेल है यहाँ पर, क्या आपसे एक छोटा सा वादा मिल सकता है कि आप इस संघर्ष में तो नहीं लेकिन इस सफर में हमारे साथ हैं? ऑल द मेन इन द हाउस, हाथ ऊपर हो सकता है, तालियां हो सकती हैं। इक्वली इम्पॉर्टेंट जो प्यारी प्यारी महिलाएं हैं, जो सारी लेडीज हैं, आपके लिए भी, हम सब के लिए भी बहुत ज़रूरी है दैट फेमिनिज्म इज जस्ट नॉट अबाउट मेल बैशिंग। तो समाज में हम सबको साथ मिलकर ये गाड़ी आगे बढ़ानी होगी। हमारे साथ उमेश जी बैठे हैं और मैं बताना चाहती हूँ, उमेश जी से हमारे काफ़ी बहुत सारे सांस्कृतिक मंच पर संवाद रहता है, और आपके आज्ञा से और मैडम की आज्ञा से 2 लाइनें प्रस्तुत करूँगी जो मैं लिख कर लाई थी आज के इस विषय के लिए। आप सब लोग सुनने को तैयार हैं? तालियां कहाँ हैं आप सब साथियों की? भाई जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है, सक्षम समाज की बात हो रही है। धन्यवाद। 2 सुंदर पंक्तियां। हाँ, मैं नारी हूं, प्रेम हूं, तपस्या हूं, अभिमान हूं। हाँ, मैं नारी हूं, सहयोग हूं, साथ हूं, समर्पण हूं। हाँ, मैं नारी हूं, कला हूं, योद्धा हूं, ज्ञान हूं। हाँ, मैं नारी हूं, लेकिन मैं अकेली नहीं हूं। आगे पथ पर कंधे से कंधा मिलाकर पूरा करना होगा ये सफ़र। उम्मीद है हर जनजाति होगा मेरा इसमें हम सफ़र। हाँ, मैं नारी हूँ। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ बुलाया। विचारों का सिलसिला तो और आगे चलेगा और खूब सारी बातें होंगी। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका आमना मैम। और काफ़ी आप लोगों के सामने इन्होंने बहुत द्विपक्षीय बात रखी है और बताया भी है कि किस तरीके से इक्वालिटी की बात हम करते हैं तो इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि इक्वली ट्रीट। जो प्रकृति ने आदमी और औरत के जो फिज़िकल या फिज़िक बनाया है उसके हिसाब से क्या इक्वालिटी होनी चाहिए। अब हम कहें कि नहीं एकदम औरत को भी उतनी ही स्ट्रेंथ होना चाहिए, मस्कुलर स्ट्रेंथ होना चाहिए और वो आदमी के साथ उतना ही आगे आगे काम करे, तो नहीं। वी जस्ट हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ द एंटायर फिजिकल सिस्टम एनवायरमेंटल बैलेंस टू बी मेंटेन्ड बिटवीन दिस जेंडर इक्वालिटी का मतलब यही है कि हम उनको किस तरीके से एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे लेके आए जहाँ पर कि वो सारी अपॉर्चुनिटी उनके पास हो जो कि अभी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, या हम अभी ऐसा नहीं वर्ड यूज़ करना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है कि मेल डोमिनेटेड, बट अभी भी हमारे इंडिया में वो मानसिकता है कि डोमिनेशन मेल का है कि कभी भी औरतों बोलते हैं तुम ये काम नहीं कर सकती हो और तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो अगर हम आंकड़ा उठाएं और हर जगह देखें तो विमेन या जो फीमेल है सब पासिंग मेल एट एवरी पॉइंट, एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है या कोई भी ऐसा स्किल ओरिएंटेड मेडिसिन है या एविएशन इंडस्ट्रीज़ है। अब तो आर्मी में भी लड़कियों का एक अलग ग्रुप बन गया है जिसमें कि दे आर इक्वली पार्टिसिपेटिंग। सबमरीन है, कहाँ पर कहीं आकाश से लेके पाताल, पानी, कहीं भी आप ऐसा देखिए जहाँ की पार्टिसिपेशन नहीं हो। तो ये एक बड़ा सराहनीय कदम है। और मैं एक क्वेश्चन बस आपसे एक पूछना चाहूँगी कि किस तरीके का चेंज आप देखना चाहेंगे कि क्या चेंज होना चाहिए और इस चेंज के पीछे क्या सक्सेस रहेगा। देखिए, बदलाव सदा अच्छा होता है, चेंज इज़ ऑलवेज गुड, लेकिन बदलाव आसान नहीं होता, बदलाव थोड़ा सा कठिन होता है। आगे के अगर हम बदलाव के बारे में देखें तो यही होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन जहाँ हैरेसमेंट ना हो, अदालतें जहाँ सक्षम तरीके से, देखिए कानून बहुत सारे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उस कानून की लागू करने में जो विषय है, जो जैसे हम कोर्ट जाते हैं, फैमिली कोर्ट जाएं, कितने सारे तारीख पे तारीख विचार चल रहा है, तो कोर्ट्स जो कहीं ना कहीं दोनों मेन एंड विमेन फ्रेंडली हों, प्रकृति जो सदा सबके लिए अच्छी हो। आज हम देख रहे हैं किस प्रकार से नई प्रकार की बीमारियां उपस्थित हो रही हैं जिसमें पूरी ह्यूमैनिटी की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत सवाल है। तो प्रकृति से लेकर, क्लासरूम से लेकर, कोर्ट से लेकर, संस्थाओं से लेकर, नीतियों से लेकर, बदलाव का रास्ता वो जो महिला व पुरुष दोनों को सक्षम बनाए। बदलाव के रास्ते में दूसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अधिकारों की तो बात आसान से करते हैं लेकिन कर्तव्य को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। देखिए, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दे बोथ आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। दिस इज़ वाई whenever we speak to any especially young audience, मैं आप लोगों से एक चीज़ जरूर कहूँगी, निस्संदेह अधिकार मानव के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन अधिकार के भी साथ साथ हमारे जो कर्तव्य हैं, कहीं ना कहीं जब हम उन दोनों को जोड़ देते हैं तो निस्संदेह आगे का पथ सरल व आसान बन जाता है। तो इन दो चीज़ों के साथ बदलाव जो निरंतर होना चाहिए, क्योंकि आज का जो जीवन है वहाँ जिसे कहते हैं ना कि भाई सुखी जीवन का, उमेश जी मोबाइल छोड़ दीजिए, हाँ। सुखी जीवन का एक ही मंत्र, दूर रखो मोबाइल नामी यंत्र। आज इस तकनीक ने हमारे जीवन को इतना बदल दिया है कि हमारे पास हर प्रकार की वस्तु के लिए ऐप है। जब आज से थोड़े समय पहले हम कॉलेज जाते थे तो हम बसों में सफ़र करते थे, लेकिन आज आप सबके पास ऐप है, उबर है, जो कि निस्संदेह एक क्रांति का प्रतीक है। आज यूपीआई ने किस प्रकार से जीवन को एकदम बदल दिया है, लेकिन ये भी जानना होगा कि इस निरंतरता के साथ फिर जो बदलाव चाहिए वो भी कंसिस्टेंट है, होना होगा। और उसके लिए मानव के सामने एक नया दायित्व है कि प्रतिदिन हमें नई तैयारी करनी है। तो इस प्रकार के बदलाव के साथ हमें आगे बढ़ना है, अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य को भी हमें सलाम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत जल्दी से वाइंड अप करते हैं और एक ज़रूरी सवाल जसप्रीत मैम से करते हैं
कि what rights do women lack and what are the barriers that are locking them out of the economic system? I think most important is education only. Still in rural India, parents do not send their girl child to schools, and they are getting married earlier. So I think this is the most important thing. If girls are educated, they are getting education, so we can eliminate this thing from the evil society. Like they can, and if girls are empowered, they can work and they can support themselves. I think this is enough. ये शिक्षा बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल से हम सब भी इसको मानते हैं कि शिक्षित होना एक एम्पावरमेंट को काफ़ी आगे लेके आएगा, क्योंकि माइंडसेट जब बदलेगा तो समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा तो सही में देश बदलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक सवाल मैं सीमा मैम से करना चाहूँगी, परमिशन दे रहे हैं तो मैम एक है कि कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जैसे हमारे इंस्टीट्यूट हैं या आपके भी इंस्टीट्यूट में कुछ बैरियर्स होते हैं, तो फ्लेक्सिबल आवर्स का बैरियर है, रिमोट वर्किंग का है, मैटरनिटी लीव का है, वर्क लाइफ बैलेंस का कुछ बैरियर है। तो ये सारे बैरियर्स को कैसे हम हटा सकते हैं? जैसे विमेन इक्वालिटी की बात करते हैं तो कभी ऐसे हमें लगता है कि इक्वल नहीं है, नई चीज़ें इक्वल हो रही हैं या चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो इसको किस लेवल पे हम हटा सकते हैं? कुछ इस संदर्भ में आप बताएं हमें। देखिए, अभी आमना जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली। जैसे हम लोग बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, आप में शायद ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं होगा कि इंडिया दुनिया की अकेली ऐसी कंट्री है जिसमें विमेन को प्रोटेक्शन देने के लिए दुनिया के सबसे ज़्यादा लेजिस्लेशन और प्रोविजंस हैं, जिनका टोटल स्ट्रेंथ है 54 प्रोविज़न और लेजिस्लेशन के बावजूद अगर आप क्राइम अगेंस्ट विमेन इंडेक्स को देखेंगे तो 90 से, जैसे विमेन लिबरलाइजेशन की उन्होंने बात करी, तब से लेकर के अब तक इसमें लगभग 1000% का राइज़ हुआ है। अब सवाल ये है कि अगर लॉ बना करके भी आप महिलाओं को एम्पावर नहीं दे पा रहे, देखिए उनकी भागीदारी बढ़ी है, ये डेफिनेटली बहुत ही वेलकमिंग एक साइन है, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनको सम्मान मिल पा रहा है जिसकी कि वो हकदार हैं? अगर मिल रहा है तो फिर लेजिस्लेशंस की संख्या नंबर 1 नहीं बढ़नी चाहिए। किसी भी समाज में ज़्यादा लॉ का मतलब ये होता है कि जो सोसाइटी है ना, वो दूसरे के अधिकारों के प्रति और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं है। अगर आप जागरूक हैं, अगर महिलाओं का सम्मान हर कोई करे, तो क्या हमें 54 लेजिस्लेशन और प्रोविजंस की ज़रूरत पड़ती? क्या हमें इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाने की ज़रूरत पड़ती? हमें ज़रूरत पड़ रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक ये लैकिंग है कि हम महिला को वो स्थान नहीं देना चाहते जिसको कि वो डिज़र्व करती है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्थान जो होता है वो ये होता है कि हम उसको रिस्पेक्ट दे करके उसको इंसान की तरह समझें। आपने देखा होगा आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, पहले क्राइम होते थे, अब हीनियस क्राइम्स हो रहे हैं। हीनियस क्राइम मतलब ब्रुटैलिटी की सारी लिमिट क्रॉस होती जा रही हैं। 54 पीस में, 34 पीस में, 40, ये जो क्राइम्स हो रहे हैं जिसका लेवल, या अभी हमने आंध्रा की घटना देखी जो उस डॉक्टर को जलाया था उन्होंने, इसका मतलब आप उसको इंसान ही नहीं समझ रहे हो। तो हमें 2 चीज़ों पे समझना पड़ेगा, इसीलिए मैं बार बार सबटल बॉडी की बात करती हूँ, क्योंकि जो हमारा, अब अगर मैं ज़्यादा जाऊँगी तो शायद वो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उस पर डिस्कस नहीं करना चाहती। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम सिर्फ एक दूसरे को एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करें। दिक्कत क्या होती है कि हमने पूरे समाज को बाइनरीज में देखना सीखा। बाइनरी का मतलब ये मेरे जैसा नहीं है ना तो ये अलग है, ये लड़की है, ये लड़का है, ये फलाना है, धमाका, ये जो बाइनरी सिस्टम डेवलप किया गया, ये बाइनरी सिस्टम से हमें अपने आप को अलग करना पड़ेगा। और बाइनरी सिस्टम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन और डिफरेंस क्रिएट करता है, फिर उसको भरने के लिए रास्ता बताता है, लेकिन वो ये नहीं सिखाता कि आप बाइनरीज में चीज़ों को देखना बंद करो। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब आप जेंडर इक्वालिटी में जब हम फिजिकली कंपेयर करते हैं, देन रिमेंबर विमेन आर फार मच सुपीरियर इन कंपैरिजन टू मेल, and that has a different reason, and one of the very important reason is they have capacity to procreate. ये एक यूनिक, अगर आप इसके विज्ञान को भी देखो और ध्यान से समझो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें कैसे पास ऑन होती हैं, तो ये इट्स नॉट अ नॉर्मल प्रोसेस, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। और अगर आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रकृति ने चीज़ों को किस तरीके से बनाया हुआ है और क्रिएट करने की जो क्षमता स्त्री को दी हुई है वो उसकी यूनिकनेस है। हमने क्या किया, चीज़ों को मोनेटाइज किया।
और मोनेटाइज करने का सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जाता है। मोनेटाइज का मतलब जिस चीज़ में पैसा नहीं है ना उसकी वैल्यू नहीं है। ये जो दृष्टि आई ना कि जिसमें पैसा नहीं उसमें वैल्यू नहीं है, तो जो पैसा कमाने वाली महिला हुई वो तो वैल्यूएबल हो गई, लेकिन जो घर पे काम करके हम सबको पाल रही है ना उसकी वैल्यू हमने ज़ीरो कर दी। हमको ये समझना होगा कि जो हमारे माँ बाप ने, हमारी माँ ने हमें जो पाल के इतना बड़ा किया, उनके कंट्रीब्यूशन को आप ज़ीरो नहीं कर सकते। और ये कंट्रीब्यूशन को ज़ीरो करने का परिणाम है जो हमें समाज में विसंगति दिख रही है। हमें अभी इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि जो आप डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हो उसमें महिला के, इसीलिए आप देखिए एक नया ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड क्या कि जो लेडी घर का काम करती है उसको उसका पति भत्ता देगा। क्या आप अपने माँ के कंट्रीब्यूशन को मनी में कन्वर्ट करके उसको कंपनसेट कर सकते हो क्या? 9 महीने जो आपको अपने पेट में रख करके पालती है और पैदा करती है, क्या आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो क्या? पर हमने अपनी सोच को इतना छोटा बना लिया है ना कि पैसे के आगे हमें कुछ दिखाई नहीं देता। हमें फीमेल बॉडी के यूनिकनेस को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और इसीलिए फिर मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि शिव और शक्ति का जब कॉन्सेप्ट होता है तो शिव और शक्ति में क्या डिफरेंस है। शिव ने शक्ति को अपने आप से अलग किया और बोला कि तुम पूरी सृष्टि को क्रिएट करो। और अगर आप देखो, आप इमेजिन करो, इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतनी बड़ी धरती इसमें लटकी हुई है, एक पर्टिकुलर स्पीड से घूमती चली जा रही है, आज से नहीं अरबों साल से, उसकी स्पीड नहीं चेंज होती। वो कौन सी शक्ति है जो उसको घुमा रही है? आप में से बहुत सारे लोग साइंस के स्टूडेंट होंगे, आपको पता होगा बिना एनर्जी की धरती मूव नहीं कर सकती, वो मूव हो रही है। शक्ति जब अलग हुई ना तो उन्होंने वो प्रकट हुई। प्रकट का शक्ति का मतलब, प्रकट का मतलब क्या होता है? जो हमें दिखाई देता है, जो प्रोक्रिएट कर सकता है, जो हमें दिखता है, वो शक्ति है। ये जो शक्ति है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसीलिए आप देखोगे शी में ही है लेकिन ही में शी नहीं है। तो शी में जो शक्ति का पावर है ना, शिव ने अपने आप को अलग किया, लेकिन एक्चुअल में शक्ति में शिव समाहित है। तो जो शिव और शक्ति का कॉन्सेप्ट है वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस और एक ह्यूमन बीइंग के कॉन्शियसनेस का रिफ्लेक्शन है। जहाँ वो ये कहता है कि शक्ति का जो रिप्रेजेंटेशन महिला के रूप में है उसे आपको स्पेशल स्टेटस देना चाहिए, वो रिस्पेक्टेबल होनी चाहिए किसी से भी ज़्यादा समाज में। और उसकी जो एक स्पेशल फिजिकल कंडीशन है ना, आपको उसको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। इसीलिए जैसे इन्होंने बोला ना, फ्लेक्सी वर्किंग आवर हुए, क्योंकि उसको बच्चों को भी देखना है, अपने घर परिवार को भी देखना है। अगर आप उसको सिर्फ, अभी आप लोगों ने यूरोपियन कंट्रीज़ का अगर आप मॉडल देखोगे तो उन्होंने क्या किया, अगर वहाँ कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है उसको कह देते हैं कल से तुम नौकरी पे नहीं आओगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बच्चे का प्रोडक्शन और वस्तु के प्रोडक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर एक लेडी एक मदर बन रही है ना, तो उनके हिसाब से वो एक ऐसा काम कर रही है जिसका उस कंपनी को कोई मॉनेटरी गेन नहीं है। उन्होंने इस लेवल पे जाकर के एक फीमेल बॉडी को मोनेटाइज किया है। ये शोषण है। आप प्रकृति के विरुद्ध जाकर के एक फीमेल बॉडी को बियॉन्ड लिमिट एक्सप्लॉइट कर रहे हो। लेकिन इसीलिए अगर आप भारत में देखोगे तो भारत में आज लेजिस्लेशन है। जब लेजिस्लेशन नहीं था तब भी महिलाओं को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंपल्सरली रिलैक्स करने के लिए टाइम प्रोवाइड किया जाता था। आज हमारे यहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है। आपको जान के ताजुब होगा कि यूरोप की बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं, अमेरिका में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे आज भी मैटरनिटी लीव नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं आओगे तो फिर उनकी कंपनी का लॉस होगा, उसको पूरा कौन करेगा। इस सोच को जो मॉनेटरी बेस्ड है ना और जो मनी से गवर्न होती है, हमें कहीं ना कहीं डिस्करेज करना होगा और हर चीज़ को हमें प्रॉफिट से जोड़ना बंद करना होगा। इस प्रॉफिट से जोड़ करके हमने एनवायरनमेंट का सत्यानाश किया। इस प्रॉफिट से जोड़ करके हम कहीं ना कहीं फीमेल बॉडी को भी ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। बाहर वो जा कर के पैसा लेकर के आए, कमाए, घर अच्छा चले, पर घर में क्या हम उसको रिलैक्सेशन दे रहे हैं? वर्क प्लेस पे क्या हम उसके स्ट्रेस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं? आज हम भूल गए कि वो नेक्स्ट जनरेशन को क्रिएट करते हो। और इस चीज़ को कोई छोटा करके अगर आंकता है ना, तो आप बहुत ही निगेटिव डायरेक्शन में उसकी क्रिएटिविटी को ट्रीट कर रहे हैं। तो ज़रूरी ये है कि उसके स्पेशलाइज्ड रोल को, उस पर बॉडी के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक को स्पेशल तरीके से ही ट्रीट किया जाए और इसी बेसिस पे उसको स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। आपने देखा महिला सीट रिजर्व होती है, मैटरनिटी लीव होती है, स्पेशलाइजेशन, ये स्पेशल स्टेटस देने का नतीजा है। लेकिन इन सब के साथ ये कानूनी पहलू हो गए। कानूनी पहलू से सिर्फ काम नहीं चलेगा, हमें कहीं ना कहीं अपने मेंटल प्रोसेस को भी ढंग से
अलाइन करना होगा नेचर के लॉ के अकॉर्डिंग। और अगर ये हम कर पाएंगे तो हमें किसी लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं होगी, हमें किसी जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होगी, हम सेल्फ सेंसिटाइज होंगे, क्योंकि हमें पता है कि सामने जो है ना वो भी इंसान है और इंसान ही नहीं है, उसका रोल इतना इम्पॉर्टेंट है कि हमें उसको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट देना चाहिए। और अगर आप पूरा का पूरा इंडियन फिलॉसफी आप देखोगे तो वो इससे भरी पड़ी हुई है। इसलिए जब यहाँ द्रौपदी चिल्लाती है ना दुर्योधन की सभा में, वो श्लोक आज भी आपके संसद में लिखे हुए हैं। वो महिला थी पर उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि एक महिला के सम्मान के लिए इतना बड़ा युद्ध महाभारत लड़ा गया। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, एक महिला के सम्मान के लिए इतना बड़ा युद्ध महाभारत लड़ा जाए। एक सीता को खोजने के लिए राम 1500 किलोमीटर नंगे पैर पैदल चल के जाएं, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। ये दिखाती है कि हमारी सोसाइटी जो है ना महिला को जितना सम्मान मिलना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा सम्मान देती थी। इसलिए अभी आमना जी ने एक बात बोली, मैं इसको कंप्लीट करूँगी। इंडिया दुनिया का अकेला ऐसा देश है, दुनिया भर के सारे देशों में आज भी फेमिनिस्ट मूवमेंट महिलाएं लड़ रही हैं। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश था जहां फेमिनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत पुरुषों ने करी है, कहीं नहीं हुआ है। तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ करो, आप मानो कि वो स्पेशल है, उसकी जो स्पेशलिटी है और अनयूजुअल जो कंपैरिजन है इसको ख़त्म करके हमें उसको सिर्फ रिगार्ड देना, उसको अपॉर्चुनिटी देनी, अच्छी एजुकेशन देना हमें सिखाना है। बाकी सारी चीज़ें करने में वो खुद सक्षम है, हमें उसे किसी बैसाखी को देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज जितने तरीके से और सहजता से आपने सब चीज़ों के बारे में बताया, बल्कि आमना मैम, जसप्रीत मैम, सब तीनों लोगों ने इतने अच्छे तरीके से बताया और मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा लाइट भी डाला है, प्रकाश भी डाला है इन सारे इश्यूज़ के ऊपर। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए और हमारे संगिनी जो हमारी एक इनिशिएटिव क्लब है, जेंडर सेंसिटाइजेशन क्लब है संगिनी, उसके माध्यम से हमने ये एक पैनल डिस्कशन का आयोजन किया और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सेशन रहा और बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ कि बच्चे भी काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किए, सुने और उन्होंने अप्रिशिएट किया। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। Well, witnessing a serious women power here. Thank you, noble women, for such a bilateral and instructive panel session. We all hold in high esteem to have you all here with us. Please give a huge round of applause. We'd like to invite Dr. Umesh Pathak upon the stage to give his words of wisdom. Thank you. I don't think I have much more on this topic, as our learned esteemed guest described everything. Dr. Seema Singh लीगल पर्सपेक्टिव से लेकर के हमारे हिंदुस्तानी तहजीब और मैथोलॉजिकल स्टडीज़ से हमने सब कुछ सीखा और जाना, शिव शक्ति के स्वरूप को सीखा है। सामाजिक सरोकारों के बारे में जसविंदर जी ने बहुत ही रूरल एरियाज़ के बारे में बताया और इंटरनेशनल स्टेटस वीमेन का क्या है डॉक्टर आमना मिर्ज़ा ने हमें समझा दिया है। बहुत सुंदर पैनल डिस्कशन, एक बार ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। और 2-4 पंक्तियां मैं दूंगा, मेरे पास इसके अलावा कुछ होता नहीं है, तो बस इतना कहूँगा कि खुशी दोनों जहां की पा रहा हूँ, परिंदों को उड़ा कर आ रहा हूँ। लिबरेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है, आज़ादी। खुशी दोनों जहां की पा रहा हूँ, परिंदों को उड़ा कर आ रहा हूँ, ज़मीं से हैं फलक तक वो नुमाया, बेटियों के तराने गा रहा हूँ, बेटियों के तराने गा रहा हूँ। पंक्तियों पे बहुत सारे सीरियल बने हुए हैं,
बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। और आमिर खुसरो ने एक स्त्री के दर्द को 2 पंक्तियों में बताया, मैं उसी को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इजाज़त मंच की चाहूँगा कि एक बच्ची कैसे अपने पिता से कहती है मुझे कैसा वर चाहिए। कहती है बाबुल जिया मोरा घबरा, बाबुल जिया मोरा घबराए, मोसे पीर सही ना जाए, बाबुल जिया मोरा घबराए, बाबुल मोरा मोरी इतनी अर्ज सुन लीजो, मोहे राजा घर ना दीजो, मोहे राज न करना ए बाबुल जिया मोरा घबराए, बाबुल मोरा मोरी इतनी अर्ज सुन लीजो। बहुत एनर्जी है, बाद में काम आएगी, एग्ज़ाम बहुत है बेटा। मोरी इतनी अर्ज सुन लीजो, मोहे सोनार के घर ना दीजो, मोहे जेवर कभी न भाए, बाबुल जिया मोरा घबराए, बाबुल मोरा मोरी इतनी अर्ज सुन लीजो, बाबुल मोरा मोरी इतनी अर्ज सुन लीजो, मोहे लोहार के घर दे दीजो, मोहे लोहार के घर दे दीजो जो। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for such a beautiful song. May I have your attention, please, everyone? Well, you did reply to that, so I do have your attention. So here comes the time you all have been eagerly waiting for. Yes, you guessed it right. The results of the poster making competition. The students from all over Delhi Participation goes to Cheshtha Goyal. Give a huge round of applause for her. The second position goes to Preksha Jain. Come on, audience, keep clapping. The first position goes to Riya Negi. Heartfelt congratulations on the well-deserved success of all the winners. Please give a huge round of applause for all the winners. Acts of honor comes from honor written upon the heart. Therefore, I would request Dr. Sangeeta Malik, Professor Mames, to felicitate Dr. Seema Singh with a shawl and a memento.
Audience, please give a huge round of applause. I would request Dr. Nisha Dhanraj, Assistant Professor MEMS, to felicitate Ms. Jaspinder Kaur with a shawl and a memento. We would like to request all our panelists and respected dignitaries to sit back and enjoy the event. उसके आंसू आखिरी पल तक मुझसे जवाब मांगते रहे कि आखिर कसूर क्या था मेरा। रोज सुबह कॉलेज जाती थी, पढ़ाई करती थी, खुश रहती थी, बड़ी होनहार और समझदार थी मेरी बच्ची। फिर पता नहीं किसकी नज़र लग गई उसे। पिछले कुछ दिनों में बड़ी चुप चुप सी रहने लगी। जब भी उसके पास जाओ, उससे कुछ बात करने की कोशिश करो तो बिना कुछ सोचे समझे बस रो देती थी। कल रात को उसका मनपसंद खाना बनाया था, पर दरवाज़ा बंद था। मुझे कुछ समझ में आ रहा था, पर दिल मानने को ही तैयार नहीं था। ऐसी चीज़ें सोचकर भी रूह सी कांप जाती थी मेरी। आज से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने बदलूंगी। पर छेड़ के देखो तो मुझको
बल दिखा के मर मर के नहीं चलूंगी। कदम मिला के देखो तो मैं साथ में तेरे चल दूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। Every second of this performance felt worth it. Hats off to Nirvana for such a prevailing performance. Please give them a huge round of applause. नीचे है ठंडी सी एक धरती कहती है आजा दौड़ेंगे, यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है कहती है सब पीछे छोड़ेंगे। उंगलियों से कल की रेत बहने दे, आज और अभी में खुद को रहने दे। खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। एक टुकड़ा हंसी चख ले, एक डेली जिंदगी रख ले। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल।
जो हो गया, माना कहा था ये लो हो गया। चुटकी कोई काटो ना है हमको होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में। साथ में बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो वो चल पड़ी अपने ये नाव है। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव